Good morning, students. As you all know that yesterday we have covered half part of the chapter from a Moments book, that is chapter number 5, The Happy Prince. So today we are going to continue with the second part. Okay, so before proceeding, I just want to have a quick recapitulation of what we have studied yesterday. So we in the first paragraph हमने पढ़ा था कि there was a prince who died, and when he died तो उसकी स्टैच्यू, बहुत एक बड़ी स्टैच्यू इन द सिटी बनाई गई थी. वाई? बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, हम लोग स्टैच्यू क्यों बनाते हैं? टू इन द रिमेम्बरेंस ऑफ समबडी हु हैड डन अ ग्रेट वर्क, राइट? अगर हम सिर्फ ऐसे ही नहीं बना देते कि आई लाइक दिस पर्सन सो आई एम गोइंग टू मेक अ स्टैच्यू ऑफ हिम, इट्स नॉट पॉसिबल. सो अ पर्सन हु डज ग्रेट वर्क एंड in their remembrance we make the statue. So same thing was happened with the Happy Prince. Why उनका statue क्यों बनाया गया? क्योंकि when he was alive, he told us, he narrated the story to the swallow that when he was alive, he never knew what tears are. Why? Because he lived in a palace where tears were not allowed. The sadness was not allowed to enter. इससे हमें पता चलता है कि हैप्पी प्रिंस ने अपने जितने भी किंगडम में, जो सिटी में लोग थे, उनको बहुत अच्छे से रखा था. ही नेवर वांटेड टू सी एनीबडी sad, so he tried his level best so that everybody will be happy. And वैसा ही हुआ. And he said कि I lived my life throughout happily, and then when I died, even then I died happily. तो that is the reason why लोगों को उनकी इस चीज़ अच्छी लगी and लोगों ने उनका स्टैच्यू बना दिया था. Okay, so in this story we also read about a very important character, that was a little bird who was swallow. So the little bird was going to Egypt. तो उसने क्या किया? All day he flew long, and then at night he thought कि now let me take some rest. और वो रेस्ट के लिए उसने क्या देखा? एक स्टैच्यू है, तो बर्ड को लगा कि ये स्टैच्यू काफ़ी अच्छी है, इसके नीचे मुझे अच्छे से शेल्टर मिल जाएगा. एंड देन he was happy that उसको एक ऐसा बेड मिला, that was a golden bed. क्यों? क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस का जो स्टैच्यू था, that was completely covered with gold, and उनकी आईज में 2 sapphires थे and a ruby stone in his sword. So now what happened, as you can see in the picture, when the bird was about to sleep, ऊपर से 2 drops गिरे. तो the bird saw the clouds. उसने स्काई को देखा कि अभी बारिश का मौसम तो लग नहीं रहा, पर ये बूंदे कहाँ से आ रही है? एंड देन लेटर ऑन ही थॉट कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द स्टैच्यू व्हेन इट कैन नॉट प्रोटेक्ट मी फ्रॉम रेन. तो यही सोच के ही थॉट कि दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी. और वो वहाँ से जैसे वो उड़ने की कोशिश कर रहा था, ही सॉ समथिंग. नाउ व्हाट डिड ही सी? He saw that the statue of the Happy Prince was crying. He had tears in his eyes. तो स्वॉलो ने पूछा कि why are you crying? Sorry, firstly he asked कि who are you? तो स्टैच्यू ने रिप्लाई किया that I am the Happy Prince. तो ऑब्वियसली अगर आप कह रहे हो कि I am Happy Prince, तो if you are crying, everybody is going to raise the question that if your name is Happy Prince, then why are you crying? So the same question was put up by the swallow, in which he said कि but then why are you crying? So now in this slide, the Happy Prince told his story that when I was alive, like I told you right now, sadness was not allowed to enter his palace. Now he's saying कि now I am dead. So इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने मेरी इतनी बड़ी स्टैच्यू बना दी that I am able to see all the miseries, all the ugliness of the city. तो मैं यहाँ से देख पाता हूँ कि people are troubled, there are many poor people who are not able to have any food. तो ये सारी चीज़ें वो स्वॉलो को नरेट करते हैं. तो वो ये भी बताते हैं कि मैं भी क्या देख पा रहा हूँ कि एक विंडो से मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक वुमेन है हु इज़ वेरी पुअर, हु इज़ वेरी हंग्री. ठीक है. और वो बताते हैं कि वो जो लेडी है वो सीमस्ट्रेस है. सीमस्ट्रेस, जैसे मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया, सीमस्ट्रेस इज़ अ लेडी टेलर. ठीक है. तो वो कहते हैं कि एक सीमस्ट्रेस है जो एक सैटिन के गाउन में कुछ काम कर रही है. ठीक है. तो नाउ अगेन ही सेज कि और उसके ही बगल में एक बेड है जहाँ उसका बेटा है, एंड दैट चाइल्ड इज़ क्राइंग. वाई? बिकॉज फर्स्टली ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर. एंड जब आप
को फीवर होता है तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं या फिर कोई भी आपको क्या बोलते हैं कि टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वाटर्स, राइट, वाटर, सॉरी। तो सेम जब बच्चा अपनी मदर से ऑरेंज मांग रहा था, फ्रूट मांग रहा था, तो हिज मदर वॉज नॉट एबल टू गिव हिम, वाई? बिकॉज दे वर पुअर, उनको खाने के पैसे नहीं थे, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे कैन अफोर्ड फ्रूट्स? सो द मदर वॉज ऑल्सो क्राइंग बिकॉज शी वॉज नॉट एबल टू फुलफिल हर चाइल्ड विश। तो वहाँ मदर भी रो रही थी बिकॉज शी वॉज पुअर एंड हेल्पलेस, एंड हियर द सन वॉज क्राइंग बिकॉज ही वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड ही वॉन्टेड टू ईट समथिंग। तो अब प्रिंस कहते हैं, प्रिंस ने उस बर्ड को कहा कि प्लीज़ डू मी अ फेवर दैट आई वॉन्ट यू, कि जो मेरे स्वॉर्ड में जो रूबी है आप उसको लेके जाओ, और क्योंकि मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट एबल टू मूव, तो मैं चाहता हूँ तुम वो रूबी लेके उस लेडी को दे दो सो दैट शी कैन सेल इट एंड यू नो लिव हर लाइफ हैप्पीली। तो जैसे प्रिंस ने कहा था बर्ड ने वैसे ही किया, बट बर्ड ने ये भी चीज़ कहा था कि आई डोंट लाइक बॉयज़ एंड आई हैव टू गो टू इजिप्ट, आई कैन नॉट हेल्प यू। बट हैप्पी प्रिंस ने उसे काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की, एंड एट लास्ट व्हेन द बर्ड गॉट कन्विंस्ड तो द हैप्पी प्रिंस वॉज वेरी हैप्पी। उसके बाद स्वॉलो ने वो रूबी उनके स्वॉर्ड से लिया एंड देन उसने उस लेडी के घर में जा रहा था। तो जैसे वो वहाँ जा रहा था तो उसने देखा कि व्हेन ही एंटर्ड द रूम, तो उसने क्या देखा कि द बॉय वॉज टॉसिंग हियर एंड देयर, टॉसिंग हियर एंड देयर मतलब वो इधर उधर करवटें बदल रहा था बिकॉज ही वॉज हंग्री, एंड व्हेन यू आर हंग्री यू आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली। सो सेम थिंग वॉज हैपनिंग विद द बॉय, एंड द swallow even saw, the bird saw कि उसकी जो मदर है बिकॉज होल डे शी वॉज वर्किंग सो शी गॉट टायर्ड, और वो काम करते करते ही सो गई थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, this was the quick recapitulation of what we have studied yesterday. So now we are going to start with the fresh topic, not topic but the second part of this video. I hope it is clear till here. Okay, तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इसमें दैट उसने क्या किया था, जो बर्ड है उसने उस रूबी को वुमेन के थिम्बल की साइड रखा था, एंड थिम्बल इज अ थिंग विच प्रोटेक्ट्स योर फिंगर फ्रॉम गेटिंग हर्ट फ्रॉम निडल। तो बेसिकली जो थिम्बल है ये टेलर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. मतलब फैनिंग मतलब जैसे वो बर्ड वहाँ से जा रहा था तो उसने क्या किया, अपने विंग से उसके फोरहेड में थोड़ी सी हवा दी, तो उसको काफ़ी, उस बॉय को काफ़ी अच्छा लगा। I must be getting better and he sank into a delicious slumber. स्लम्बर का मतलब होता है स्लीप। और जब उसको, क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो आपको काफ़ी कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर जब वो बर्ड ने उसको अपने विंग से थोड़ा फैन किया तो उसको काफ़ी अच्छा लगा और वो अच्छी से नींद में चले गया था, मतलब उसको फिर उसके बाद अच्छी नींद आई। जब बर्ड ने एंटर किया था, लाइक आई टोल्ड, द बॉय वॉज टॉसिंग हियर एंड देयर, दैट मीन्स ही वॉज अनेबल टू स्लीप। बट जब ये बर्ड जा रहा था तो उसने क्या किया, उस बॉय को अच्छे से सुला दिया था। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. मतलब उसके बाद बर्ड हैप्पी प्रिंस के पास गया और बर्ड ने बताया कि what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. अब ये बर्ड कह रहा है कि क्योंकि earlier if you remember yesterday I told you कि बर्ड ने बोला कि जो जिस सिटी में जो हैप्पी प्रिंस थे तो वो कहता, बर्ड ने कहा था कि दिस सिटी इज़ वेरी यू नो कोल्ड और मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी। तो अब बर्ड ने ये क्या कहा कि मुझे ना अब काफ़ी अच्छा लग रहा है, वार्म लग रहा है, मतलब थोड़ा गर्म गर्म सा लग रहा है, इवन दो कि यहाँ काफ़ी ठंडी है। अब देखिए प्रिंस का रिप्लाई क्या था, दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। तो प्रिंस ने क्या बोला कि क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया तो इसलिए तुम्हें यू आर फीलिंग बेटर। एंड द लिटिल स्वॉलो बिगैन टू थिंक एंड देन फेल asleep, थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीप। मतलब वो बर्ड ये सारी चीज़ें सोच रहा था, एंड बर्ड की एक चीज़ और थी कि वो जब भी कुछ चीज़ सोचता था बर्ड तो उसको अच्छी नींद आती थी।
When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to the Egypt. तो ये कौन बोल रहा है? The bird is saying. And he saw in high spirits at the prospect. At the prospect मतलब उसने ये अपने मन में ठान ली थी कि आज मैं पक्का इजिप्ट जाऊंगा रात में. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple is the highest tower of the church. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, the bird is sitting here. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Moon rose मतलब जैसे शाम होने लगी, रात होने लगी, तो वो वापस happy prince के पास गया. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. मतलब जब हैप्पी प्रिंस ने बोला कि क्या तुम अब इजिप्ट जा रहे हो, तो बर्ड ने कहा कि यस, अब मैं जा ही रहा हूँ, मैं स्टार्ट ही कर रहा हूँ जाना. One second. So now what happened? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. Garret एक ऐसा डार्क रूम होता है घर के सबसे ऊपर. तो वो कहता है, अब प्रिंस ने क्या बोला? फर्स्टली उसने एक ऐसी लेडी को देखा था whose child was crying because of hunger and he was suffering from fever and the lady was unable to do anything because they were poor. तो इस चीज़ को प्रिंस ने जब देखा तो ही फेल्ट बैड अबाउट इट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी रूबी दे दी उस लेडी को. अब सेकेंड थिंग, वो स्वॉलो से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं अभी एक मैन को देख पा रहा हूँ जो एक गैरेट में है. गैरेट मतलब एक छोटे से डार्क रूम में है. ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विथर्ड वायलेट्स. मतलब अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं एक आदमी को यहाँ से देख पा रहा हूँ, एक मैन को देख पा रहा हूँ जो एज यू कैन सी इन द पिक्चर ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क और उसके आसपास सारे पेपर्स हैं. His hair is brown and crisp and his lips are red as pomegranate. As you all know, this is a fruit. And he has large and dreamy eyes. He's trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more. There is no fire in the grate and hunger has made him faint. अब वो बता रहे हैं कि आपको जैसे आपने लास्ट स्लाइड में देखा था कि द मैन ही वाज सिटिंग एंड उसके आसपास पेपर्स थे. दैट मीन्स इट इज़ ऑब्वियस दैट ही वाज राइटिंग समथिंग. और जब आप कभी अपने मन से लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक स्टोरी लिखने बैठूं तो ऐसे पॉसिबल नहीं कि एक ही बार में वो स्टोरी में प्रॉपरली लिख पाऊँ. तो सेम थिंग वाज हैपनिंग विद द मैन. ही वाज राइटिंग समथिंग एंड और वो क्या कर रहे थे, कुछ चीज़ अच्छी पसंद नहीं आती तो ही वाज स्टेयरिंग द पेज and he was doing something again. So now what did the happy prince told here कि he was writing a play for the director. और वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, छोटा सा रूम था, विंटर सीजन था और उसके पास कोई भी फायर नहीं था अपने आप को गर्म करने के लिए, वार्म करने के लिए. एंड वो काफ़ी ज़्यादा भूखा था और इसके वजह से उसे क्या हो गया था, उसे चक्कर आके फेंट मतलब उसको चक्कर आ गए थे. क्यों? क्योंकि रूम काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, कुछ गर्म करने के लिए था नहीं उसके पास एंड वो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी. I will wait for you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. He asked if he should take another rupee to the young playwright. तो अब ये क्या बता रहे हैं कि बर्ड का भी नेचर काफ़ी अच्छा था. उसने क्या बोला कि ठीक है मैं आपके लिए एक और रात यहाँ रुक जाऊँगा, पर और ना एक काम किए करो, आप मुझे एक और रूबी दे दो. तब हैप्पी प्रिंस ने क्या बोला, अलाज इज एक्सप्रेशन जो हम सैडनेस के टाइम यूज़ करते हैं कि अलाज ही इज़ डेड, मतलब जब आपको बहुत दुख होता है. तो प्रिंस को किस बात का दुख है, दैट आई हैव नो रूबी नाउ, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर उसके स्वॉर्ड में सिर्फ एक ही रूबी थी. My eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. अब वो क्या कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ मेरी आँखें हैं जिसमें सफ़ायर्स हैं, और वो मतलब सफ़ायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. तो बोलती कि अब मेरे पास सिर्फ सफ़ायर्स बचे हैं.
He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. Playwright मतलब जो ये काम लिखता है. तो उन्होंने क्या कहा था कि तुम इसमें से मेरी आइज में से एक सफ़ायर ले जाओ और उस मैन को जाके दे दो. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said. तो अब उन्होंने क्या बोला कि ये सफ़ायर ले जाओ, उस मैन को दे देना एंड ही सेल इट टू द ज्वेलर, और उससे वो अपने लिए फायरवुड ले लेगा ताकि वो विंटर्स में क्या होता है मोस्टली आप आके सामने बैठ के अपने आप को सेकते हो, अपने आप को वार्म करते हो. तो वो कहते हैं कि वो फायरवुड लेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वुड बी एबल टू फिनिश हिज प्ले. डियर प्रिंस, सेड द स्वॉलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगैन टू वीप. अब ये बर्ड ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसके पास 2 आंखें थी एंड हाउ कैन ही रिमूव वन ऑफ देम. तो बर्ड वॉज नॉट रेडी टू डू इट. तो अब आपको इससे क्या पता चल रहा है कि बर्ड भी थोड़ा अटैच्ड हो गई थी हैप्पी प्रिंस से, क्योंकि अगर आप भी अपने लाइफ में एक ऐसे पर्सन से मिलेंगे हु इज सैक्रिफाइसिंग हिज एवरीथिंग फॉर समवन एल्स, सो यू फील बैड फॉर देम. तो सेम थिंग बर्ड वॉज फीलिंग बैड फॉर द हैप्पी प्रिंस. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. तो अब प्रिंस ने क्या बोला कि उस बर्ड को कहा कि प्लीज़ जैसा मैं बोलता हूँ डू एज आई से यू. तो क्योंकि अब बर्ड के पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने वो सफ़ायर लिया और वो उस मैन के पास चले गए. It was easy enough to get in as there was a hole in the roof. तो ये अब बर्ड बता रहे हैं कि उस घर में जाने बहुत इजी था क्योंकि उस घर में रूफ में एक होल था जिसके थ्रू वो बर्ड पास हो गया. थ्रू दिस ही डार्टेड मतलब अपने आप को पुश किया उसने अंदर एंड केम इनटू द रूम. द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स. अब क्या बोल रहे कि द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स. जब आप ये पोजीशन आप खुद इमेजिन करें, जब आप एक बेंच में बैठे रहते हैं, फॉर एग्जांपल अपने स्कूल टाइम का ही ले लो. इफ़ यू नॉट फीलिंग वेल तो आप क्या करते हो, आप अपने हाथ फोल्ड कर लेते हो और सर उसके अंदर रख देते हो, ठीक है. तो वैसे ही सेम पोजीशन में वो यंग मैन था एंड क्योंकि वो इस पोजीशन में था एंड ऑलमोस्ट वो हाफ फेंट ही था, तो उसको ना बर्ड्स की विंग्स की आवाज़ नहीं है. अदरवाइज सपोज करें आप एक रूम में हैं एंड देयर इज नो वन अराउंड, तो उस रूम में क्या होता है, साइलेंस होता है. तो अगर कोई भी बर्ड आ जाती है तो आपको पता चल जाता है. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विथर्ड वायलेट्स. विथर्ड वायलेट्स एक फ्लावर्स है जो उसके टेबल के आसपास थे. सो अगेन बर्ड ने क्या किया, उस सफायर को कहाँ रखा, जहाँ वो जो प्ले राइट है, ये जो यंग मैन है अपना काम कर रहा था उसके बगल में रख दिया ताकि वो जब भी उठेगा ही विल बी एबल टू सी दैट सफायर. I'm beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy. तो ये कौन कह रहा है, ये यंग मैन कह रहा है और वो क्या कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है ये कोई ग्रेट एडमायरर मतलब मेरा कोई बहुत ही अच्छा खास पर्सन होगा जो मुझे बहुत पसंद करता होगा, तो उसने मुझे ये दिया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बेच के अपना प्ले लिख सकता हूँ. एंड ही वॉज हैप्पी नाउ. The next day, the swallow flew down to the harbor seaport. He sat on the mast of the large vessel and watched the sailors working, as you can see in the picture. I'm going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded. And when the moon rose, he flew back to the happy prince. तो वहाँ ऊपर सबसे ऊपर वो बैठ के वो बर्ड क्या कह रहा था कि दैट नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द इजिप्ट, क्योंकि मैंने 2 बहुत अच्छे काम कर लिए. एंड देन जैसे फिर से शाम हुई वो हैप्पी प्रिंस के पास गया. सो स्टूडेंट्स, नाउ अगेन बिकॉज दिस चैप्टर इज क्वाइट लॉन्ग, सो आई हैव डिवाइडेड इट इनटू 3 parts. One part we have completed yesterday, second part we have completed today, and the third part we are going to complete it, we are going to sum it up tomorrow. And I hope this video is clear to you, and if it's not, please go through the video.